So anyone from your side? Simil, Shreyaj, Sir, I'm next. Akshaj, Om, Dhaval. Akshaj, please switch on the camera, everyone. Sir, actually, because of lightning strikes near my home, my internet is not working that well. So I will keep my camera off. I mean, after when electricity will come, you will join, right? Om, Dhaval, Vaibhav. Right? The simple one relation is given for a plus b plus c is 0, right? And now you have to prove a square plus b square plus c square. The whole square is something like this. Only we have to use the formula Yeah, I wisely. got it. Very ये good. क्वेश्चन पहले भी किया है शायद से. Yes, yes, yes. एकदम होना चाहिए एक्शन. मैं स्टार्ट करूं? Should I start? सर एक मिनट. Okay. धवल कैमरा ऑन बेटा. See, this is given, right? कि a square plus b square plus c square, the whole square. We have to find value of this, right? And the relation what we have is only a plus b plus c is 0. Okay. So what if I'll just apply the formula on this, right? इस पे मैं apply करूँ तो what I'm getting? I'm getting a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 because I know that if this is PQR, so p square plus q square plus r square plus twice of b square c square plus c square a square. Is this okay? So already we have this one, and now we have to think about this, right? So one of the portion of this is already there, right? ये तो है ही अपने पास, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. But now we have to find value of
a square b square plus b square c square plus c square a square. Right? How to get this back? Like, इसकी values कैसे निकाला जाए? How to get this value? Right? So can I say this? Like we know that a plus b plus c is equal to 0. Squaring both sides. So what I'm getting, a square plus b square plus c square plus twice of ab plus bc plus ca is equal to 0. Is this okay? This is the basic formula, right? I hope all you know this, right? Means what I'm getting AB plus BC plus CA is equal to nothing but minus of A square plus B square plus C square by 2, right? But what I have to find the square of these individuals. Square लाने का क्या तरीका हो? मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, right? So what we are getting from this, a square b square, b square c square a square. मैजिक यहां पर है, ध्यान देना, मैजिक यहां पर है क्या? प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट इज दैट, ए बी स्क्वायर सी प्लस ट्वाइस ऑफ, राइट, टू मैंने कॉमन ले लिया, सो ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी सी is equal to, right, again I am getting a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus twice of the complete term what we got from this, a square b square b square c square c square a square and whole thing divided by 4. Can you see this, right? कुछ मजेदार सा काम हो रहा है क्या? We Can- get ABC common and then Very good. यही तो ट्रिक था बस. This, if you will take ABC common, what this number is coming? सुरेश क्या आ रहा है बेटा, ये क्या लग रहा है? सर सर 0. ए प्लस बी प्लस सी जीरो हाँ, आ जाएगा। प्लस बी प्लस जीरो था, राइट? तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास है ये बहुत सिंपल से फॉर्म में आ गई, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, right, is equal to 4 times of this. So if I'll cancel out this, so I'm getting 2 times of that you have to. I hope everyone is getting this. yes sir. वेरी गुड सिमिल, क्या पकड़ा था तुमने, एकदम बीच में ही तेरे को नजर आ गया कि यस ये तो डायरेक्टली जा रहा है. बस जस्ट छोटे से जो होते हैं ना, राइट, वहीं पर हम लोगों को पिक करने हैं कि एग्जैक्टली हाउ दिस इज गोइंग. अभिनव, वेरी गुड. थैंक यू सर. धवल, ओके बेटा? दिया, जील, ओके? Sir, actually, when I was solving, I extended the method by adding 2 or 3 more useless steps. ओ ओ ओ, तो वो लंबा जा रहा होगा, then you are not able to just connect the dots की exactly how we can go this, ना? This later I solved it, sir. Very good. Done everyone? Done everyone? See. एक छोटा सा मैं अलग क्वेश्चन दे रहा हूं. शायद मैंने कुछ लोगों को शायद करवाया हो, जो भी देख ले एक बार, या शायद नहीं करवाया हो, राइट? दिस इज द ग्रीन ट्रायंगल, पिंक स्क्वायर, just I have to color this out. Again a triangle, the pink one, then the circle, blue circle,
and one more circle is there. And that's a green circle, right? This is the green circle. अमोघ, कहाँ से रेडियो चला रहा है? सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर लिया सर। गुड इवनिंग सर। सर आप क्या करा रहे हैं एक बार बताएंगे? बस एक क्वेश्चन जो दिया था होमवर्क वो डिस्कस किया बेटा, और जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर हाँ, कौन सा क्वेश्चन आपने डिस्कस किया ये होमवर्क वाला में? था। ये जो था ना लास्ट क्वेश्चन कल जो दिया था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 सी, हाँ yes, yes. ये सिचुएशन गिवन है, राइट? अब इसके पीछे में आज दशहरा का दिन है, तो इसी के पीछे में एक दशहरा में क्या बनता है, व्हाट स्पेशल, आई डोंट नो, क्या स्वीट्स रख लें? हाँ, रसगुल्ला, रसगुल्ला ठीक है। रसगुल्ला जो है इनके पीछे में, राइट, रसगुल्ला पैकेट इज प्लेस्ड अंडर वन ऑफ द 5 ऑप्शन। इन 5 ऑप्शन के पीछे में कहीं पर रसगुल्ला रखा हुआ, राइट ना। अब 2 लोग हैं, राइट, सो चलो एक अमोघ है, राइट, अमोघ ही आया तो अमोघ को एक रख देता हूं, एंड किसको ले लूं, दिया, ठीक है, अमोघ एंड दिया, ये 2 लोग, ठीक है। क्या किया मैंने अमोघ को अलग से मैसेज मार दिया, राइट, प्राइवेटली अलग से पर्सनल मैसेज मार दिया कि द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, सर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है क्या? यस बेटा, राइट, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कि कौन से शेप के पीछे मैंने रखा, राइट, रसगुल्ला जो रखा है कौन से शेप के पीछे रखा है। एंड दिया को मैंने प्राइवेटली मैसेज कर दिया और उसको बता दिया कि द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, दोनों को प्राइवेटली मैंने बता दिया ना। अब मैंने जस्ट लाइव होके ऑनलाइन अभी जो चल रहा है इसी लाइव में मैंने पूछा, राइट, फर्स्ट टाइम, डू ईदर ऑफ यू नो वेयर द रसगुल्ला इज? दोनों साइलेंस, दोनों ने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने पूछा डू यू नो नाउ? फिर दोनों साइलेंस। बट जैसे मैंने थर्ड टाइम पूछा डू यू नो नाउ, तो दोनों ने एक साथ बोला यस। क्या लॉजिक है इसके पीछे, कैसे हुआ ये पूरा कहानी, फिर से पूरी कहानी को सुनना, राइट। अरे अमोक को बताया था मैंने ना, अमोक ने आंसर भी कर दिया। फिर कहानी को सुनना। कहानी ये है कि फर्स्ट में मैंने दोनों अमोक को शेप बता दिया कि व्हाट शेप, बिहाइंड व्हाट शेप द रसगुल्ला इज। मैंने दिया को बता दिया बिहाइंड व्हाट कलर द रसगुल्ला इज, राइट। देन आई आस्क्ड डू ईदर ऑफ यू नो वेयर द रसगुल्ला इज? दोनों सेड नो, नो, silence, right, no response. Again I said do you know now? No response. But जैसे थर्ड टाइम मैंने पूछा both said yes. So what is the process and where is the rasgulla? दो आंसर तो आ चुके हैं। Sir, I did not understand the question. क्वेश्चन सर शेप क्या है उसका? किसका शेप बेटा? सर आपने सिर्फ इतना Triangle. बता के रखा। ट्रायंगल मैंने बताया, जो अमोक को बताया कि ट्रायंगल के पीछे है या स्क्वायर के पीछे या सर्कल के पीछे, मैंने उसको ये बता के रखा।
दिया को मैंने ये बता के रखा कि ग्रीन के पीछे है या सर ब्लू के पीछे है, या जो भी हमारे राइट। सर उन्होंने डायरेक्ट मैसेज से कम्युनिकेशन नहीं किया ना। हाँ, डायरेक्ट मैसेज से मैंने केवल एक एक चीज बता के रखा ना। सर आपने उनको बताया, उन्होंने कहीं बीच में से पूछ लिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने ब्लॉक करके रखा। मैंने वो ब्लॉक करके। सिमिल, इज दिस ओके बेटा? नाउ इट्स क्लियर? So, मतलब, we tell them the same information 3 times, then they will understand. Like, हाँ, so every time they are eliminating the process, so you have to understand कि how they are eliminating the process. Now this is clear. एक छोटा सा हिंट मैंने दिया कि now every time they are eliminating the process, तो how they are eliminating the process? सर आपने फर्स्ट टाइम पूछा, दोनों ने नहीं बोला, सेकंड टाइम पूछा फिर से दोनों ने नहीं बोला, और थर्ड टाइम पूछने पे यस बोला। तो हर एक स्टेप में वो दोनों एलिमिनेट कर रहे थे अपने पूरे प्रोसेस को, राइट? तो हाउ दे वर एलिमिनेटिंग एंड व्हाट वुड बी द लाइक आंसर या रिस्पॉन्स क्या हो सकते? सर लेकिन दोनों को मालूम है कि एक को आपने शेप बताया और एक को कलर बताया है। क्वेश्चंस के लॉजिक बनाने के लिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, राइट? थोड़ा सा ध्यान से। जील ने आंसर कर दिया एंड और सबने अपने अपने डिलीट कर दिया आंसर। वेरी गुड जील। 3 मिनट्स यू अपनी लॉजिक बना के रखो। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, राइट? प्रसम, होने वाले क्वेश्चन है ये। अक्षर, हेलो सर। यस होना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन सिंपल है। सर टाइप कर रहा हूँ पूरा वो, सर ओके सारे एलिमिनेशन। ओके ओके, दैट्स गुड। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। धवल, ओम, rejoin again. Getting my voice now, Prasam? वैभव, वैभव, are you understanding this question बेटा? नो सर। क्वेश्चन क्या है ना कि यहाँ पर शेप एंड कलर दो अलग अलग चीजें गिवन है, राइट? किसी दो लोगों को मैंने अलग से प्राइवेटली मैंने बुलाया एंड दोनों को मैंने क्या कहा कि एक को बता दिया कौन से शेप के पीछे में प्राइस, राइट? एंड दूसरे को मैंने बता दिया कौन से कलर के पीछे में प्राइस। तो एक बंदा जानता है, एक स्टूडेंट जानता है कि कौन सा शेप के पीछे में प्राइस है, सर और भेजा। दूसरा स्टूडेंट जानता है, दूसरा स्टूडेंट जानता है कि कौन से कलर के पीछे में प्राइस है, राइट? नाउ अब जब मैंने फर्स्ट टाइम उनसे पूछा क्या इधर यू सर मेरा आंसर सही है क्या? देखता हूँ बेटा, इधर इफ यू नो कि वेयर इज द रसगुल्ला, वेयर इज द प्राइस, तो दोनों सेड नो, नहीं मालूम, राइट? अब दोनों ने नहीं क्यों बोला, राइट? नहीं बोलने का रीजन ये है कि अब जैसे कलर की बात करूं, हाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद यू विल अंडरस्टैंड। अब मेरे को आंसर नहीं मालूम, मेरे को मान लो ये बोला गया होता है कि ट्रायंगल के पीछे में है प्राइस, तो यहां पर मेरे पास दो ट्रायंगल है, तो आई एम नॉट श्योर कि कहां पर होंगे, राइट? और मेरे को ये बता दिया गया होता है कि सर्कल के पीछे में है प्राइस,
राइट, तो भी मेरे को नहीं मालूम होता है, तो ये दोनों तो मेरे आंसर नहीं हो सकते। नहीं तो फर्स्ट में ही मैं आंसर मान लो बोल दिया होता कि आपने जो ये रखा है इसमें स्क्वायर के पीछे में प्राइस है, तो मैं तो आंसर फर्स्ट में ही राइट हो जाता। मैं तुरंत बोलता हाँ मालूम है स्क्वायर के पीछे में प्राइस, दिस इज द प्राइस, दिस इज द रसगुल्ला, देयर इज रसगुल्ला, तुरंत लेके खा लेता। इज दिस ओके Yes, sir. ना? Yes, sir. अब एंड कलर की बात मैं करूं तो कलर में व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू हैव पिंक कलर, राइट, मेरे को ये पता होता कि पिंक के पीछे पीछे में प्राइस है, तो कौन से शेप के पीछे में प्राइस है, क्या मैं बोल सकता था? फिर मेरी कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ जा रहे हैं, या तो ये प्राइस जो होगा ट्रायंगल के पीछे में होगा, या हो सकता है वो स्क्वायर के पीछे में होगा। तो पिंक कलर तो मेरे लिए अगर आंसर में है तो मुझे नहीं मालूम, या ग्रीन के साथ भी यही प्रॉब्लम है। मतलब साफ है कि ब्लू के पीछे तो प्राइस नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. ब्लू के पीछे भी प्राइस नहीं है, स्क्वायर के पीछे भी प्राइस नहीं है, ये दोनों तो मेरे कंफर्म हो गए। बचा क्या क्या? बचा मेरे पास ये तीन चीज। फिर सेकंड चांस में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, डू यू नो नाउ, राइट। फिर से मैं बोल रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है, राइट। अब क्यों बोल रहा हूं नहीं मालूम है? अगर पिंक के पीछे है तब तो सेकंड में मेरा आंसर आ जाता पिंक वाला, मतलब पिंक के पीछे भी प्राइस नहीं है। और अगर सर्कल के पीछे में तो आंसर आ जाता, वो भी नहीं आया है। मतलब लास्ट ऑप्शन मेरा यही है जिसके पीछे प्राइस है। तो वेरी गुड एवरीवन, मैक्सिमम लोगों के आंसर आए हैं ग्रीन, ट्रायंगल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके एवरीवन, Yes, sir. फिर से मैं एक्सप्लेन करूं या लाइक यू ऑल आर सर अंडरस्टैंड? मैंने पूरी सोल्यूशन के साथ भेज दिया। अरे वाह, देखो अक्षर ने मेरे को एक डायरेक्ट मैसेज किया है, उसने पूरे के पूरे जो स्टेप्स है उसने पूरे लिख दिया। तो स्पीड इतना फास्ट कैसे है, हैं? वेरी गुड। श्रेया जी, इज दिस ओके? यस सर। क्लियर है एकदम, यस सर। राइट? ओके, नाउ सो दिस वाज द फर्स्ट की लाइक, अगर मेरे को बिल्डअप करने हैं, राइट, क्वेश्चंस को बिल्डअप करने हैं इस सेंस में कि एग्जैक्टली मैं एलिमिनेट कर पाऊं, राइट, तो दिस एलिमिनेशन प्रोसेस इज ऑलवेज देयर, राइट। सर एक कहाँ का क्वेश्चन है? अरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, बहुत सारे वेराइटी होंगे इसके, राइट। ये मतलब जो अब बिल्डिंग करूंगा ना कि कैसे आपको सोचना है, राइट, डिफरेंट जो सिनेरियो होंगे उसमें कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और राइट डाउन। तो ऐसा ही क्वेश्चन या नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन? बेटा मिक्स रहेगा, वो मैथ्स और ये दोनों ना हमारे यस। सबसे अधिक आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जो अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो लॉजिकल होते हैं, लॉजिक वाले होते हैं, राइट। तो हमें दोनों के बीच का एक वो धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है, राइट। तो थोड़ा टाइम लेता है बट ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो लेट्स एक चैलेंज लो। अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आई गेस मैंने शायद कुछ लोगों से पहले भी पूछा हो। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर यू कैन राइट विथ 4 टूल्स? फिर भी मैं आपसे मिलने आई थी, आपने मुझसे यही पूछा था। माय फेवरेट वन। यस सर, आपने सब ये बहुत लोगों से पूछा इंटरव्यू में। माय फेवरेट वन। तो प्लीज राइट डाउन, अगर याद हो तो बहुत अच्छा लगेगा। सर भेज दिया। सर भेज दिया। बहुत लोगों को याद है। भेज दिया। देखो जिनसे नहीं पूछा है उनका गलत आ गया, और जिन सबसे पूछा है सबका सही आ गया। एवरीवन राइट इट डाउन, अरे शर्माना नहीं है। सर मेरा आंसर सही है क्या? मैं बता रहा हूँ, नहीं तेरे से तो पूछा था, हाँ अक्षय, चिटिंग चिटिंग, तेरे से पूछा है मेरा सही है क्या? मैं। सर सही तो है ना? आप पूछा तुम, ये 4-5 लोग जो हैं उनसे पूछा हुआ है। आंसर जो जो आ रहे हैं देखो, एक आंसर आ रहा है 2222, एक आंसर आ रहा है 2 to the power 22 to the power 2, एक और आंसर था 2 to the power 222, राइट।
वेरी गुड। ये 3 आंसर जो आए हैं, Sir, I have one more answer. यस, Sir, 2 raised to 22 raised to 2. हाँ, दिस इज 22। 2 raised to 2 to the power 22. ये सर वही है, आंसर को सही है। वही है सर। सर वो This is 2 the- हाँ This is the answer, right? When you have to count this, right? कि थोड़ा गड़बड़ वाले सिचुएशन होते हैं, right? Now, ये नहीं बताया कि मल्टीपल एक्सपोनेंशिएशन अलाउड है। हाँ, सब कुछ मतलब नंबर्स में लाइक यू कैन डू एनीथिंग ना। Sir, हाँ, sir, तो 2222 factorial could also be. अब फैक्टोरियल मैंने नहीं लिया था, राइट? कि फैक्टोरियल में फिर भी सर फिर 2 to power फैक्टोरियल उससे ज्यादा बड़ा हो जाता। हाँ, ये यहाँ पर फैक्टोरियल से बड़ा होगा तो ये सबसे बड़ा नंबर हो जाता, बहुत सारे चेंजेस आ जाते, राइट? बट हमें चेक करना पड़ेगा वहां पर कि कौन से नंबर मेरे लिए जा सकते हैं, राइट? नाउ वन मोर ऑन दिस, द नंबर 1 through 10 written in a row. Written in a row, right? Can the sign plus and minus be placed between them so that the value of the resulting expression is 0? सर भेज दिया। सर आपने ये भी पूछा था। ये भी पूछा है सर। हाँ, वही मेरे को तो ये वो सर कुछ बहुत सारे प्लस या माइनस या सिर्फ एक प्लस या माइनस? कितने भी प्लस माइनस बेटा, it's up to you, right? What you feel, what you सर आपका और एक था वो एंट वाला क्वेश्चन। नहीं, वो नहीं पूछूंगा आज। ये 2 क्वेश्चन है जो थोड़े इंपॉर्टेंट से हो जाते हैं, जो जिसको यूज मैं आगे करूंगा क्वेश्चंस पे, दैट्स द रीजन आई आस्क। सर भेज दिया। वेरी गुड जील, वेरी गुड धवल, वेरी गुड श्रेयज, वेरी गुड प्रसम, सिमिल, वेरी गुड। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड लॉजिक। डन एवरीवन, स्टार्ट करें। ओके, वाह धवल, वेरी गुड। So see, the sum up to 1 plus 2 plus 3 up to 10 is nothing but 55. And our requirement is we have to divide this number 55 into 2 integral parts such that both will be equal. So, not possible. Okay.
Is this okay? Yes. This is Yes, sir. possible. So these are the very simple question, right? And these are the very basic questions, right? But इन क्वेश्चन में जैसे थोड़े से और वर्किंग बढ़ जाती है ना, तो क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक के बीच के क्वेश्चन आ जाते हैं और वो थोड़े टफ हो जाते हैं। जैसे ध्यान से देखना ना, अब मैथमेटिक्स एंड लॉजिक दोनों को मैं राइट एक साथ ला रहा हूं। यू हैव टू ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट 3000 bananas to market. This is a very good question. So ध्यान से ना, that's 1,000 kilometer away, right? Condition first है क्या? Camel can carry maximum 1,000 bananas. And condition second is camel eats one banana for every kilometer, right? You have to find maximum number of bananas that can be delivered to the market. सर हमारे पास कितने कैमल हैं? एक कैमल है बेटा, गरीब आदमी हम लोग एक ही कैमल से काम करना है बस। सर तो कैमल आगे जाएगा, मतलब कि मार्केट तो में ये तो जाएगा खा फिर जाएगा वापस पीछे जाएगा। तो ये तो पहुंचते पहुंचते ही खा जाएगा। सर हमने सर तो इस एक और बार किया है, हाँ, एक और बार किया है ये पहले। आंसर इस बार सही आना चाहिए पूरी तरह से। सर चल के नहीं जा सकते? चल के मतलब चल के ही जा रहा है नहीं सर, हम लोग हाथ में पकड़ के नहीं जा सकते? क्या? ये बनाना पैदल? सर बनाना आंसर रिजेक्ट करें, आंसर व्हाट बेटा? इसमें आंसर करें। नहीं 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 नॉट नॉट वी आर नॉट गोइंग बाय। सर पैदल नहीं जा सकते आखिरी किलोमीटर के लिए, तो कि 3 बनाना बच जाए? नहीं, 3 बनाना नहीं, बहुत कम हो गए, हमें अधिक बनाना आएगा बेटा। सर हम ऐसा चेक पॉइंट्स डाल सकते हैं क्या रास्ते में, आप बना सकते हो अपना चेक पॉइंट। जिससे रोज जाए और वापस आ जाए? हाँ चलेगा। डेजर्ट में बनाना कैसे आया? कैमल केवल डेजर्ट पे नहीं पाए जाते। सर यहाँ पे मैंने देखे नहीं है। हम्म सर 1 किलोमीटर कंटिन्यूअस या बस टोटल डिस्टेंस में 1 किलोमीटर? नहीं समझा मैं। सर कंटिन्यूअस 1 किलोमीटर चलना है तो खाएगा, या बस 1 किलोमीटर टोटल में चल लिया तो एक खाएगा? किलोमीटर जैसे भी कंप्लीट हुआ ही हैज टू ईट वन। तो सर जब भी वो वापस आएगा तभी भी एक एक हाँ सर, किलोमीटर पे अगर ही वापस खाएगा। आया तो 1 किलोमीटर माना गया उसका? अब आगे जाके जैसे पीछे आया तो फिर 1 किलोमीटर उसे एक बनाना चाहिए। सर मतलब अगर 1 किलोमीटर आगे गया और फिर 1 किलोमीटर वापस आया तो 2 बनाना खा तो लेगा ऐसे ही? हाँ, सर इसमें आंसर करेक्ट। सर पर अगर वापस आते आते बनाने ही नहीं बचे तो क्या होगा? गया तो जब वापस आ रहे तो बनाना लाए नहीं तो क्या होगा? है तो गया, खत्म बेचारा, वो तो वहीं गिर जाएगा। हमारा गया सबका सब काम, और कैमल भी गया। बनाना भी गया, कैमल भी गया।
सर आपने बोला कि कैमल सिर्फ डेजर्ट में नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि मार्केट 1,000 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो सर फिर इस हिसाब से तो एंटार्क्टिका में है सारे कैमल। अंटार्कटिका से यहाँ का डिस्टेंस 1000 नहीं होगा। यहाँ से 1000 किलोमीटर पे क्या होगा? सर ग्रीनलैंड नहीं होगा। और हाँ, सर पाकिस्तान, पाकिस्तान भी थोड़ा ज्यादा पास हो गया। अफगानिस्तान सर। 1000 किलोमीटर नहीं बेटा। हाँ सर। नहीं सर। ना ना, 1000 तो यही पास में ही होगा कहीं हमारा, मतलब बेंगलोर बेंगलोर पहुंचेंगे तब 1000 हो जाएगा यहाँ से। नहीं, 1000 तो पास में होगा। दिल्ली मेरे ख्याल से अधिक होगा मेरे डिस्टेंस। थार डेजर्ट में जाकर कैमल नहीं आ सकते। हाँ सर, डेजर्ट जाएंगे हम लोग सर। डेजर्ट में करेंगे कस। हाँ, थार डेजर्ट, हाँ से मैंने लिखा थार डेजर्ट में है। अब बताओ। क्वेश्चन मैथ्स का छोड़ के ना तुम लोग लॉजिक में चले जा रहे हो, सब मैथ्स का क्वेश्चन है ये। सर चेक पॉइंट्स तो बनाना पड़ेगा, इतना पता है मुझे कि 100% चेक पॉइंट बनेगा। सर 2 चेक पॉइंट तो बनाने पड़ेगा ताकि वो जाके वापस आ सके। वेरी गुड, ये एक बहुत बड़ा हिंट है जो श्रेयज ने दिया है, राइट। सर कि मैं तो 2,000 चेक पॉइंट्स बना रहा हूँ। 2000 में मतलब बना सकता हूं, लेकिन 2000 चेक पॉइंट में मेरे को हर बार पीछे आने में उसे एक ना एक बनाना फिर देना पड़ेगा, तो मेरे को जितने। आधा ही किलोमीटर बना, इसलिए आने जाने का कॉस्ट एक ही बनाना होगा फिर। हाँ, लेकिन जितने अधिक चेक पॉइंट, बस आधा बार करना पड़ रहा है। जितने अधिक हमारे चेक पॉइंट होंगे ना, उतना हमारे को लॉस्ट होगा, राइट। तो मिनिमम चेक पॉइंट पर हम लोग मैक्सिमम काम कर पाए। सर मेरा सही है क्या? नहीं, अच्छा, अच्छा ट्राई है, लेकिन हड़बड़ा रहे हो, हड़बड़ाना नहीं है। 3, मैं स्टार्ट करूं? नहीं सर, नहीं सर। सर नहीं इसमें नहीं सर, अभी नहीं। मिल क्लोज हो काफी बेटा, नंबर्स इंटीजर इस तरह के एकदम प्यारे से नहीं आएंगे। थोड़ा ये अच्छा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। बहुत क्लोज बट पहुंच गए हो सिमिल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। थोड़ा सा और। सर मेरा सही है क्या? अभी देखते हैं बेटा। सर 1000 से ज्यादा होंगे या कम होंगे, इतना तो बता दो। 1000 से कम होगा बेटा। सर मेरे को तो 500 के आसपास लग रहा है। हाँ, सही जा रहे हो। थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और। सर मेरा सही है। नॉट बैड धवल, थोड़ा वर्किंग और सर बढ़े। मेरे को तो नेगेटिव में आ रहा है सर। हाँ, वही मैं बोला था, नेगेटिव आ जाएगा। बहुत अधिक चेक पॉइंट बन गए। सर मेरा -3000 आ रहा है। सब किसी भी कंट्री को खराब करने के लिए यही किया जाता है, मालूम है। इतने सारे चेक पॉइंट बना दो ना कि ट्रैफिक ही सब जगह पर रुक जाए, वैसे ही हो रहा है। सर सर कैमल कैमल आधा से बनाना उधार खा ले सकते सकता हैं है क्या? क्या? हाँ, सर कैमल आधा बनाना खा सकता है क्या? क्या कंजूसी कर रहा है तू? कौन इतना कंजूस होता है कि बेटा कैमल को आधा बनाना खिला के ये पूरा काम करवाना चाहता होता? सर मार्केट में। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सर क्योंकि आधा बनाना अगर एलोड है तब तो आंसर आ जाता। करने में तो वेंडर डेप्ट में जाएंगे। हम्म। सर कैमल वापस आने में भी बनाना खाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। 1 किलोमीटर चलेगा अच्छा, एक बार बताओ, अगर आप डीजल या पेट्रोल से गाड़ी चला रहे होते तो आप क्या बोलते? सर आगे जाएंगे केवल उसी का डीजल पेट्रोल लगना है, पीछे आएंगे उसका पेट्रोल मत लगाओ। अरे आगे जाके पीछे आओगे तो दोनों तो पेट्रोल लगेंगे। हाँ, तो बेचारा कैमल को खिलाओगे तो 1 किलोमीटर चलने पर उसने बोला भाई केवल एक बनाना मेरे को दे दो 1 किलोमीटर पे। यही तो रीजन है कि ट्रांसपोर्टेशन के कारण कॉस्टिंग जो होती है, जो भी बेसिक चीजें हैं उनकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाती है। यही रीजन होते हैं कि इंडिया बहुत सालों से कोशिश ये कर रहा है कि डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, नेचुरल गैसेस के लिए पाइपलाइन बनाई जा सके, जिससे डायरेक्ट पाइपलाइन से हम लोगों के पास डीजल पेट्रोल आए, जिससे कॉस्टिंग बहुत कम हो जाए। तो सर पाइप से बनाना लेके जा सकता है क्या? बहुत बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे यूरोपियन जितने कंट्रीज है ना बेटा,
उसमें पूरी पाइपलाइन बनी हुई है रसिया से, लेकिन रसिया के वार के कारण ये वो प्रॉब्लम में आ गए हैं, उनके पास नेचुरल गैसेस नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण गड़बड़ हो रही है। राइट, बहुत सारे कंट्रीज में ये कोशिश रहती है कि डायरेक्टली हमारे पास ये रीच कर जाए। हाँ, बनाना के लिए मैंने नहीं देखा है। बनाना की कॉस्टिंग, मतलब बनाना की कॉस्टिंग जो होती है, या जो वेजिटेबल्स वगैरह के लिए सर करते मेरे हैं। को आंसर आ गया। हाँ, मैं बता रहा था कि बहुत सारे देखना, इंडिया में भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं, कि एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है, वहां ले जाके पहुंचा दिया, वहां पर रखा, फिर वहां से फिर आगे जाता है। राइट, उसी तरीके से कुछ वर्किंग का है, बट चलो आओ साथ में देखते हैं। फिर हो गया, मैं पास से देखती आ गया, आ गया, देखो देखो देखो, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस। राइट, मुझे नहीं पता कितनी बार होगा, यहाँ मार्केट कहीं पर, यहाँ मार्केट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को सोचने के तरीके हम लोगों को बढ़ाने पड़ेंगे। राइट, बनाना ऐसा ही रहता है ना, कुछ कुछ। हाँ, ये यहाँ बनाना ट्री से निकाला, और मान लेता हूं हमारे पास जो गिवन जो है वो 3000 बनानास हैं। राइट, तो मेरे को 3 ट्रिप तो लेके जानी ही पड़ेगी, अगर किसी भी जगह पर मैं जा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रिप मैं गया तो वापस भी आना पड़ेगा। राइट, देन सेकंड ट्रिप मैं गया, फिर वापस आना पड़ेगा। थर्ड ट्रिप में गया, तब जाके मेरे कंप्लीट हुई ये। राइट, तो मैं कितनी बार ये टोटल गया, तो मैं बोलता हूँ कि चलो एक्स डिस्टेंस ये था, और ये मेरे पास बाद में देखता हूँ वाई डिस्टेंस को होगा। राइट, तो एक्स डिस्टेंस में कितनी बार ट्रेवल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। राइट, ये पूरे के पूरे मैं यहां से गया, वापस आया। राइट, फिर गया, फिर वापस आया, तो इतनी बार तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। नहीं, और हर बार मैं 1000 ले जाके यहाँ पर रख देता, 1000 रख दिया। राइट, फिर मतलब जितना भी मेरे पास है, मैं 1000 लेके यहां से निकला। अब ये 1000 लेके यहां से निकला, ये 1000 माइनस एक्स यहाँ पर जो जाना है, तो 1000 माइनस 2x रखना पड़ेगा मेरे, क्योंकि वापस जाने में भी तो जितना मेरे को खाना है वो रहेगा। ये समझ में आ रहा है? राइट, फर्स्ट में तो ये दोनों ट्रैवलिंग मेरी हो गई। यहां पर फिर यहां पर से जितने थे मैं 1000 लेके चला, तो 1000 माइनस 2x गया, क्योंकि यहां गया और यहां से वापस आया तो 1000 माइनस 2x, और यहां से मैं लेके गया तो ये तो बेचारा सिर्फ 1000 माइनस एक्स ही रहे। नहीं, तो ये टोटल मेरे पास आ गया 3000 माइनस 5x। ये क्लियर है? नहीं, अब ये 3000 माइनस 5x में मैक्सिमम यहां पर कितना ला सकता हूं फर्स्ट जगह पर, जहां से ट्रांसपोर्टेशन मेरे को आसान पड़ जाए। मेरी कोशिश क्या होगी, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं यहाँ बहुत तो नहीं, लेकिन 2000 अगर लाऊं तो मैं मैक्सिमाइज कर पाऊंगा अपने वर्किंग को। 1000 मैं लूज करूं, तो अगर मैंने ये 2000 यहाँ लाया होता, उस समय मेरे पास आता 5x इजिकल टू 1000, x इजिकल टू 200। मतलब ये फर्स्ट स्टॉपेज जो मैं बना रहा हूं वो 200 मीटर पे बना रहा हूं। अब मेरे पास ध्यान दो, फर्स्ट ये हो गया कि हम लोगों ने 200 मीटर पर फर्स्ट स्टॉपेज बना दिया। अब मेरे पास जो है 2000 बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ मेरे को 1000 बनाना तो पहुंचाना ही है। तभी मेरे पास 1000 बनाने को ले जाने की ये जगह है, जिसमें मैं जो भी बचा कुचा है, जितना किलोमीटर होगा उतना मैं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम एक बार में 1000 ले जा सकता है। तो मैंने बोलू तो 1000 बनाना मेरे को ले जाने हैं। यहाँ तक पहले क्लियर है या और एक्सप्लेन करूँ? क्लियर है सर। अक्षय, अभिनव, डियर सर। यस सर। सर क्लियर है। यस सर, क्लियर। ओके, यहाँ तक मैं कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये हेल्प की जरूरत है, मोर, ठीक है, या मोर, यस सर। राइट। अब मेरे को यहाँ पर से जरूरत क्या पड़ गई, ये देखो, मैं 2000 बनाना ले जा रहा हूँ, और वाई डिस्टेंस है, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 2000 बनाना है, 2000 तो ले जा नहीं सकता, मैं 1000 बनाना ले जाऊंगा, और यहाँ तक का डिस्टेंस वाई, ये वाई डिस्टेंस पे मिलेगा, फिर वापस आना पड़ेगा।
फिर वापस आके यहाँ से और 1000 बनाना ले गया, तो मेरी ट्रैवलिंग कितने बार की हो रही है? मेरी ट्रैवलिंग कितनी बार 3 times. Times, sir. राइट? तो दिस इज 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 1000। क्या मैं बोल सकता हूं? राइट? तो मेरे पास क्या बच गया? 3y इज इक्वल टू 1000, मतलब y की वैल्यू 333.33। अब कुछ 333 या 334 पर हम लोगों ने एक अपना बना, राइट? 333 पर अगर मैंने बना लिया तो टोटल मेरे पास 1001 बनाना बचे रह जाएंगे, बोल सकता हूं, राइट? अब मैंने यहां पर से 333 डिस्टेंस यहां कर लिया और यहां पर से पहले 200 डिस्टेंस कर लिया था। टोटल मेरे को कितना जाना था? 1000। दो स्टॉप मैंने बना लिया, एक है 200 के डिस्टेंस पर, एक है 333 के डिस्टेंस पर। तो टोटल मेरे डिस्टेंस कितने हो गए? 533 डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। बचे हुए डिस्टेंस मेरे पास कितने हैं? सर पर एक बनाना छूट गया ना। Sir, 467 463. या 334 ले लेता? 467 Sir, 460. 67। अब 467 मतलब यहां से यहां मेरे को जाने हैं, यहां के लिए मेरे को कितने बनाना लग जाएंगे? सर 467 बनाना। और 1000 मेरे पास बचा हुआ है, तो 1000 माइनस 467 कितना बच गया? 536 533. 533 बनाना के साथ में। तो दिस सर, वाज, एक बनाना खुद खा गए। हाँ एक बनाना खाएगा। कितना काम करा रहे हो, तो थोड़ा तो कुछ तो रहम करो यार, इतना इतना काम कराए, एक सर बनाना। एक बनाना हाथ में नहीं पकड़ के ला सकते? कैमल गिर जाएगा ना, ये तो फिर बेईमानी वाली बात अरे होगी। हाँ, कैमल के साथ हमको भी जाना है कैमल के सर। साथ में तो मुझे आना है, तो कैमल में तो मैं सर वरना 1 किलोमीटर चल लेंगे हम लोग, 1 किलोमीटर ऐसे उसने एक बनाना खा लिया तब उसको एक और दे देंगे बस। ये काम कर सकता है, ठीक है। फिर ये कंजूसी नहीं हुई क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी वाली कंजूसी है। ओके एवरीवन, Yes, sir. भाई मैंने 334 लिया था तो फिर उसका 534 आया। 334, लेकिन उसमें बनाना कम हो जाएगा ना बेटा। अगर ट्रैवलिंग आपकी 334 की है, तो ध्यान देखो ना, 1000 बनाना आखिरी में आपके पास बचेंगे ही नहीं, 998 बनाना बच गए है ना। अच्छा हाँ, वहां पे गलती की वहां, मैंने। हाँ वहां भी तो कम हो जाएगा ना। सर, कैमल को प्लीज बोल के नहीं कर सकते क्या कि एक एक्स्ट्रा बनाना उठा लो? वो तो बोलेगा मैं प्लीज, मैं तो मान गया प्लीज को, लेकिन ये समझो कि मैं मैं सर क्वेश्चन का आंसर नहीं मान रहा प्लीज को। हाँ एंड सर हमारे पे भी तो इतनी हिम्मत होगी ना 1 किलोमीटर चलने की। ये कर सकते हैं वो क्वेश्चन ने नहीं पूछा है। वो। सर डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है सभी को, Yes. सर। राइट? सो Yes, sir. ये ना, ये प्लानिंग की बात होती है बेटा। तो इस तरह के ना प्लानिंग के काफी सारे वर्किंग हम लोग को करने होते हैं। ये एक अलग सा ही चैप्टर रहता है, जिसके क्वेश्चन एक दो हमेशा हमें कोई भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, राइट? कि इफ यू सी कि राइट क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके क्या रहे, या लॉजिक हम लोग को जो बनाना रहा, वो लॉजिक को कैसे बनाया जाए ना, तो उसके लिए बहुत सारे वेराइटी होते हैं एंड क्वेश्चन की वेराइटी बहुत अलग अलग रहती है, राइट? आइए मैं कुछ आपको मैथ्स में दिखाता हूं। जैसे हम लोगों ने अभी नंबर्स के साथ में वर्किंग किया कि हमारे पास नंबर्स थे 1 to 10 नंबर्स हैं, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस की वो नंबर्स हमारे 2 के लिए भी हमने ये देखा, राइट? तो एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं जो हम लोगों को आगे वर्किंग करनी है, जिसमें 2222 के पावर मैंने दे दिया 5555, राइट? अब अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इस पर हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन पर वर्क करना है, राइट? तो एक मैं पहले आप लोगों को ये चैलेंज दूंगा, आप क्या सोच पाते हो इस पर, आप लोग बताओ, फिर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, राइट? जिस पे लेंथ पे हम लोग स्टडी कर पाए। एक बुक आती है मैथमेटिकल सर्कल, राइट? ये जितने क्वेश्चन है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन मैं मैथमेटिकल सर्कल से ही दे रहा हूँ,
सर क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक बार रिपीट कर सकते हैं, मेरा कनेक्शन थोड़ा। When 2222 to the power 5555 number is given, when we are dividing this by 7, this leaves the remainder. Remainder क्या बचेगा? ओके और ये तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक से कर सकते हैं ना? नहीं, हम लोग सिंपल सा भी करेंगे बेटा, जितना जानते हैं कोशिश वहां से हम क्या कर सकेंगे। हाँ, हम लोग जो पढ़ेंगे वो बाद में हम लोग करेंगे उस पे ना। अभी एकदम बेसिक मेथड से अगर कुछ हम कर पाए तो बेस्ट रहेगा ना। आंसर आ गया। वेरी गुड, सेंड दिस, नॉट बैड। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। यस सर। फिर मैंने आंसर भेजा। वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? सर एक मिनट। Okay. वेरी गुड अमोक। तब अब पॉइंट में आंसर नहीं आएगा बेटा, मतलब जो रिमाइंडर बचा वो, मतलब 7 से डिवाइड करके जो बच जा रहे हैं नंबर ना, दैट वी हैव टू राइट। वेरी गुड अमोक। सर सही है क्या? सर नया आंसर भेजा। अभिनव, वेरी गुड दिस टाइम। सही तो लग रहा है। सर भेज दिया। सर मैंने मॉड्यूलर अरिथमेटिक से किया। हाँ सर मॉड्यूलर से ही हो रहा है। यस सर। अच्छा, वो सब जब करेंगे उसमें अधिक अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा मॉडल क्वेश्चन। सी, सो व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान देना कि दिस 2222 वन डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 49, तो this 3 is the remainder. So my question is nothing but this is 3 to the power 5555. When we are dividing this by 7, we are getting the remainder 3. So my question is 3 to the power 5555. That's, we need key, what would be the remainder of this? Is this okay? Is this okay, everyone? Now, Yes, sir. we have to find 3 to the power 5555. When we are dividing this by 7, what remainder we are getting, right? So, सर हम लोग 3 to power 6 निकाल सकते हैं। very good, beta. 3 to the power 1 is 3 only. 3 square is 9. 9 को 7 से divide करो, remainder 2. ठीक है, not bad, but बहुत मजा नहीं आ रहा। 3 cube is 27. -1 और 7। Not bad. 3 क्यूब तो -1 आ रहा है मेरे पास, राइट। ये तो एक अच्छा नंबर है जो
आजू बाजू का आ रहा है। एंड अगर 3³ - 1 देगा 7 से डिवाइड करने पर, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, 27 है तो 7 से डिवाइड करने पर 28 इज -1। 3 to the power 6 1 देगा। वेरी गुड। हाँ, रिमाइंडर 1 ही देगा, राइट। तो ये तो और अच्छी बात हो गई, ये नंबर एक बड़ा प्यारा सा नंबर आ गया कि 3 to the power 6 वाले जितने भी फैक्टर्स होंगे दैट ऑलवेज विल गेट 1। सो दिस 3 to the power 6 अगर मैं करूं, पर फिर तो ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक ही हो गया। हाँ 100% वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक के जैसा ही आपको लगेगा बेटा ना। सो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 3 to the power, 3 to the power 5 बचेगा आखिर में। एंड ये अलग से बच गया जो मेरे पास, वो है 3 to the power 5। तो ये तो अपने आप में चला गया जो कि हमेशा 1 ही देगा। ये 3 to the power 5 को मैं लिख सकता हूँ 3² × 3³ 3² -1 दे रहा था, 3² क्या दे रहा था, 2 दे रहा था, दैट्स माइनस। बट रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता। -2 के लिए मैं लिखूंगा 7 - 2 = 5। आई सभी का यही आया, सही है ना, Yes, sir. राइट। सो ये एक Yes, ऐसा sir. विषय है या ऐसा पोर्शन है ना जिस पर हम लोगों को काम करना होगा, एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक के नाम से जाना जाता है, जिस पर हम लोगों को बहुत सारी वर्किंग, अपने आप में हम लोगों को बहुत सारी वर्किंग है जो हम लोग को इस पे करने हैं, राइट। नाउ सी, product of 22 integers is 1, right? So that the sum cannot be 0. Again, a simple and. Sir, are they positive? Product of 22 integer is 1. Prove that sum cannot be 0. Sum of these 22 integers जो भी रहेगा ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। सर वो 22 यूनिक इंटीजर्स, अच्छा नहीं यूनिक तो है नहीं सर, सॉरी सर। जो भी हो बेटा, सर 2 से ज्यादा होंगे ही नहीं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ये सब मैं बोल रहा हूँ एकदम आज वैसे ही फ्लैट क्वेश्चंस हैं, बट ये सब के एक अपनी बाउंड्री है, वो बाउंड्रीज हम लोग को समझने हैं। दैट्स द रीजन आई एम जस्ट गिविंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आपके लिए आसान पड़ेगा आगे। सर डन। वेरी गुड, वेरी गुड। होते जाए, just write down yes or something, then I'll know. Very good, Simil. Prasam, Dhaval, Amol, Arya. यस सर। यस सर। सर भेज दिया। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बस। श्रेयज, अक्षज एंड सिमिल,
ये 3 लोगों के वर्किंग मिल रहे हैं। आर्या, ट्राई। बहुत बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक से होगा। नो हाई फाई, नथिंग इज रिक्वायर्ड। सर डन, वेरी गुड। ओम, वेरी गुड बेटा। और आएगा अभिनव, और आएगा बेटा, और आएगा अभी, और है इसमें, और लॉजिक तो हाँ नहीं। सर, वो गलती से मैं एंटर स्पेस बार की जगह एंटर दबा दिया। ओके ओके। स्टार्ट करूं? डन एवरीवन? सर 1 मिनट, आपको आंसर भेजना। ओके। हाँ सर। सी, so product of 22 integers, right? So 22 numbers are very simple. A1, A2, A3 up to A22 is 1. And all the numbers are integers. So 100% either the numbers will be 1 or -1. Right? Either the number will be 1 or -1, then only will get एक number 2 हो गया तो half तो possible ही नहीं है. So like it's not possible. 0 possible नहीं है, तो केवल 2 ही इंटीजर तो मेरे लिए possible. Either it वन या माइनस। very good. And because this is coming as 1, so even odd, right? So -1 must not be odd number of times. -1 must be even number of times always. Can I say this? Right? अब ये अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है एंड प्रोडक्ट मेरे पास आने हैं, राइट, 1, एंड टोटल मेरे पास डिवीजन जो है, राइट, इवन और ऑड की डिवीजन जो होगी, मतलब पॉजिटिव की एंड नेगेटिव की दोनों की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, मैं केसेस अगर लेना शुरू करता हूं तो फॉर फर्स्ट आई कैन से कि दिस इज 0 टाइम, दिस इज 22 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 20 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 18 टाइम्स एंड सो ऑन। एंड सर अगर इवन एक्स दिया तो और 22 माइनस एक्स। very good. So every time you can see the sum of these 22 number will be 22, this will be 18, this will be 18 minus 4 will be 14, right, and this will be minus 22. So अगर मेरे को पूरे का सम 0 होना है, right, a1 a2 a3 up to, right, a22 का सम 0 होना है, तो this is possible only if, right, -1 will be 11 number of times and +1 will be 11 number of times. But if -1 is 11 number of times and +1 is 11 number of times, then the product of these 22 will be -1. And that is not possible because it was given this is +1. So our division is not at all possible in this case. Is this okay? सर सेंट ऑल 5 पॉइंट्स। Very good, beta. Very good. Very good. Right? Okay, everyone. यस सर। Right? So these are the cases when we have to find कि like जो भी हमारे केस आ रहे हैं या जो भी numbers हमारे पास possible हैं, right, उनको डील करने के लिए now you know कि एक छोटे छोटे जो वर्किंग होते हैं वो करने हैं, right? As I said, just a minute. One more thing we have to show. Write down.
राइट। आज मैं थोड़े से आप लोग को आइडियाज दे रहा हूं क्या क्या वर्किंग हम लोग को करनी है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। among 13 person there are two born in the same month. Prove this. अगर आपने 13 लोगों को सेलेक्ट किया है तो एटलीस्ट 2 लोग जो होंगे। डन। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। डन। कैमरा सब लोग ऑन करके रखोगे। अमोक, सिमिल, ओम, आर्या, धवल, जील, दिया। Sir, I cannot turn my क्या camera. हो गया? अच्छा, हो गया। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। So you can see this. This is called PHP, pigeonhole, जन होल्ड। right? मैंने हर एक मंथ को 1 2 3 4 अप टू 12 मंथ कर दिया बेटा। ये 12 मंथ्स कर दिया। अब मैं एक्सट्रीम केस पर व्हाट आई एम सेइंग कि ईच एंड एवरीवन इज कमिंग, रिटर्न एरिया। राइट? दिस इज कॉल्ड each and everyone is coming for this, and जो एक बंदा बच गया ये कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी जाएगा तो 100% we can say कि like there must be a month where we are getting at least 2%. Is this okay? ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट बात होती है जिस पर हम लोगों ने काम रखी, लेकिन इसी को देने का तरीका थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूं, ध्यान से सुनना आप। Fifteen students gathered 100 chocolates. Prove that some pair of boys or students gathered an identical number of chocolates. देखो वही क्वेश्चन है, राइट? सेम क्वेश्चन, देने का तरीका थोड़ा सा ट्विस्ट किया हो। टेक योर टाइम, दिस टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन, तो ध्यान से टेक योर टाइम। सर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या? 15 स्टूडेंट्स gathered 100 chocolates, right? अपने अपने घर से लेके आए या whatever it is, right? Prove that some pair of students or boys gathered an identical number of chocolates. सर भेज दिया। सर हो गया है तो कॉन्ट्राडिक्शन से हो जाएगा सर। हाँ बेटा, अभी लिख के भेजे, लिख के भेजे, उस पर काम यस करें। सर। सर मेरा सही है? Not bad. सर और किसी स्टूडेंट ने 0 गैदर कर सकता है क्या? कर सकता है बेटा, ये सर भी। 0 गैदर कर सकता है? हाँ हाँ, तो थोड़ा सा और एक बार वर्किंग को बढ़ाएंगे आप अक्षर। तो सर बस एक ही पेयर होगा। आराम से, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जस्ट मैं आज एक आउटलुक दिया हूं कि लाइक क्या क्या पोर्शन रहते हैं जिस पर आपको वर्किंग करनी है, जो बेसिक है ये पूरे के पूरे। एज आई सेड कि मैथमेटिकल सर्कल इज अ बुक, राइट? बहुत सी प्यारी बुक है, राइट? जो बेसिक और इनिशियल के लिए, स्टार्ट करने के लिए बड़ा प्यारा रहता है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ में वर्किंग है, सो दैट वी हैव टू डू। सर भेज दिया। सर कौन सी बुक एक बार फिर से बताओगे? हाँ बेटा, मैं भेज दूंगा अभी आप लोगों को उसमें भी ना, बट सर भेज दिया मैंने एडिट तो करके। ये प्रूव कर दिया जाए कि 100 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 15 डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो वाह, वेरी वही गुड, करना है सर।
वही उसी को कैसे मैथमेटिकल करूं। अभिनव, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस। अब उसको मैथमेटिकल में सर अब कैसे। सही है ना मेरा? सर मेरा ठीक है क्या? एक मिनट बेटा, वेरी गुड, अच्छा सही है बेटा। श्रेयज, सही है बेटा, वेरी गुड, अच्छा जी, हाँ सही, गुड। सर अगर एक बच्चा नेगेटिव चॉकलेट्स ला सकता है तो अलग बात है। नेगेटिव चॉकलेट मतलब क्या होता है? सर मतलब टोटल में से दो जो सॉरी लाए उनमें से छीन दो लिया। चॉकलेट चोरी कर ली। लेके चुरा के चला जाए। सर बैग अगर चुरा भी लेगा तो सर उसके पास तो आ ही जाएंगे ना चॉकलेट, तो काउंट ही हो जाएगा। घर पे ले जाएगा ना अपना, निकाल के देगा नहीं। हाँ सर तो नेगेटिव हो गई ना, तो सर हो ही नहीं हाँ पाएगा पॉसिबल। लेकिन अगर बच्चे 0 चॉकलेट्स ला सकते हैं तब तो फिर 0 चॉकलेट्स आएंगी। हाँ, जीरो चॉकलेट आएगा ना बेटा, तो दो लोग सेम तो हो ही गया, दो सर जीरो। 15 × 0 0। हाँ मतलब दो, अब तो यही तो प्रूव करना था ना कि आइडेंटिकल नंबर ऑफ चॉकलेट आ रहे हैं। अगर दो जीरो लाया, राइट, दो बच्चे जीरो लाए, तो अपने आप प्रूफ हो गया कि हाँ जीरो चॉकलेट है, बट पूरे का सम तो 100 होना ही चाहिए, राइट। तो लेकिन अगर 0 ला सकते हैं तो कोई बच्चा लाएगा ही नहीं चॉकलेट, सब दूसरों पे छोड़ देंगे। हाँ सब, लेकिन हमारा तो काम प्रूफ प्रूफ हो गया ना, आइडेंटिकल नंबर ऑफ चॉकलेट होने चाहिए दो के पास, हमने बोला हो गया। मैथमेटिकल तो हमने कर ही लिया, राइट। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? जीरो चॉकलेट, या वन चॉकलेट, या टू चॉकलेट, या थ्री चॉकलेट, एंड मैक्सिमम मेरे पास जा सकता है तो ये 15 वाला जो बंदा होगा वो 14 चॉकलेट तक मैक्सिमम मैं जा सकता हूँ, नहीं? Yes. अगर सब डिफरेंट है कि मैंने बोला फर्स्ट बंदा जो है वो कोई चॉकलेट नहीं लाया, सेकंड वाला जो है वो वन चॉकलेट लाया, टू चॉकलेट लाया, ये वर्किंग चलती जा रही है अगर मेरे पास, ये चलते 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 आखिरी में जो गया होगा, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये नंबर जो हमारे पास गया होगा तो 14 तक गया होगा, राइट। अगर मैंने ये एज्यूम किया कि ये दिस इज ट्रू, मतलब साफ है कि फर्स्ट के पास जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, राइट, फिर थ्री है, आखिर ये सभी को क्लियर है? जील, इज दिस ओके? Arya, is this okay? Yes, sir. Amog, this is okay? यस सर। Vaibhav, Dia, Yes, sir. right? अब ये जो मेरे पास है 0 1 2 3 अप टू 14, राइट। सो ये टोटल मेरे पास कितने चॉकलेट हो गए? 105. 107 आ रहा है। 105 सर। So 105. 105, ये 105 आ रहे हैं अगर सब के सब डिफरेंट हो तब। मतलब मेरी काउंटिंग में 5 चॉकलेट अधिक आ रहे हैं सबके, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मेरे को -5 करने पड़ेंगे। अब -5 करने के क्या क्या तरीके हैं? या तो किसी एक से मैं -5 कर दूं, सर या एक लूपहोल मिल -1 -4 कर दूं, या -1 -1 -3 कर दूं, या -1 -2 -3 कर दूं। ऐसे कोई भी केस हो सकता है, यही हो सकता है अगर 5 कम सर कर, तीसरा नहीं हो पाएगा ना? राइट। -2 इसमें तो -6 हो जाएगा। -2, राइट, -1 -1 -2 कर दी, कोई भी केस लूं। तो मान लो मैंने पहले कर दिया -5, तो किसी से भी, मतलब लास्ट तो 14 वाले से मैंने -5 कर दिया, तो 14 वाले से अगर मैं -5 कर रहा हूं तो ये 9 आ गया, जो पहले 9 है उसके इक्वल हो गया। मैं 13 वाले से कर रहा हूं तो वो 8 के इक्वल हो गया। मैं 5 वाले से कर रहा हूं तो वो 0 के इक्वल हो गया। तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर ये हो रहा है मतलब 100% है कि हमारे पास दो लोगों के पास सेम नंबर ऑफ चॉकलेट होंगे किसी एक बंदे के पास। ये तो मेरे को दो दो लोगों के पास में सेम सर एक चॉकलेट, लूपहोल मिल गया। यस, ये 3 लोगों के पास हमारे पास हो गया, और ये भी हमारे पास 3 लोगों के पास हो गया, एंड एट लास्ट मैं ये बोल ही सकता हूँ, ये 5 के 5 लोगों के पास, राइट, कहीं ना कहीं चॉकलेट सेम आ सकते हैं। इज दिस ओके? सर सर Yes, sir. आपने बोला एक बच्चा अगर 0 चॉकलेट्स लाएगा तो हो जाएगा। तो सर अगर हमने ले लिया कि 100 के सबसे पास कोई अगर नंबर आए जो सम है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का, तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 13 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स 91 मिल गया। वेरी गुड। लेकिन सर 91 मिल गया मतलब 100 पूरा होने के लिए 9 चॉकलेट्स बाकी है। तो अगर यस। 13 पे हमने 9 और ऐड कर दिया तो 1 से 12 के पास तो डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स है ही, और 13th वाले बच्चे के पास हो गया 22 चॉकलेट्स। अरे हाँ, तो फिर सर फिर 2 बच्चे बच जाएंगे। हाँ, तो और वो वाला वही होगा जो हमारे पास था, ओके सर। राइट। सो एवरी केस वी कैन काउंट कि हमारे पास हमेशा ऐसा ये बहुत प्यारा मैथमेटिक्स है, राइट। इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे बनते, राइट।
हाँ, सिंपल कंसेप्ट होता है, बट अंडरस्टैंडिंग हम लोग जितनी अधिक लेते जाएंगे आगे के लिए हमारे पास उतना आसान रहेगा, राइट। एंड वो मतलब जैसे जितना हम लोग डेवलप कर पाए हमारे लिए उतना वर्क हो सकता है। एक और क्वेश्चन ध्यान से ना, गिवन 11 different natural numbers, right? None greater than 20. Prove that two of these can be chosen, one of which divides the other. That in all cases, All cases. वो कंडीशन तो दे ही दिया ना कि सबके सब नंबर्स होने चाहिए लेस देन 20। तो ऑल केसेस नहीं आके वो 20 से लेसर वाले तो अपने आप में आ गए ना। तो मतलब एक केस ऐसा। हाँ, एक केस है, एक ओनली यू हैव टू प्रूव कि once this is always be there. तो हो गया। Write down in chat, write down in chat, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो गया है तो गलत होने के चांस है। एक बार चेक कर लो कि वर्किंग। Okay, so you're saying not the first 11 numbers, but any random numbers between 1 and 20. Yes, but Okay, sir. 11 different natural numbers, right? 1 to 20 में any of these 11 we have to। सर आप फिर से बता सकते हो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि 1 से 20 में 20 नंबर्स है आपके पास, उसमें से कोई भी 11 नंबर मैं सेलेक्ट करूंगा तो हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा कि एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा हो। अच्छा ओ ठीक। सर हमेशा या एक। एटलीस्ट एक बार होगा ही, मतलब हमेशा ही कह लो। सर नंबर्स रिपीट हो सकते हैं? नंबर नहीं बेटा, नंबर रिपीट नहीं होंगे। रिपीट होगा तो आप आपस में ही डिवाइड कर जाएगा ना, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं ले लिया मान लो 5 और 5, तो 5 ऑलवेज डिवाइड इटसेल्फ, राइट। 5 तो 5 को डिवाइड करेगा ही करेगा। आ, आर्या, ये बुक बोल रहा था बेटा मैं। दिख रहा है, मैथमेटिकल सर्कल। सर उसका फर्स्ट पेज भी सकते हो क्या आप? फर्स्ट पेज भेज। आई गेस तो बुक है मेरे पास हाँ, ऑनलाइन। होगी होगी, अगर किसी ने गिफ्ट किया होगा या कोई भी खरीदे होंगे ना, फर्स्ट इनिशियल की बुक्स होते हैं ये। लेट्स सर स्टार्ट, मैं मुझे स्टार्ट करूं। इसी बुक के इंडक्शन टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा एक तो आवाज नहीं आई बेटा, एक बार प्लीज फिर से। है। सर मुझे मैथमेटिक्स टॉपिक में इंडक्शन नाम का चैप्टर है ना, उसमें मेरे को प्रॉब्लम भेज आ देना, रहा हाँ मेरे को भेज देना, मैं साथ साथ में करवा दूंगा। हाँ। है। हाँ, ठीक है।
लेट्स सी, देखें क्या? Sir, 2 minutes. ओके बेटा। एकदम सिंपल है ये, एकदम लैंग्वेज फंसाता है, ये लैंग्वेज को आपको धीरे धीरे इसी को समझने की जरूरत है। नाइन प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड अब उसके बाद सर 9 प्राइम। कैन वी पिक 9 प्राइम नंबर्स, तुमने बोला ना? अच्छा, प्रसम 9 प्राइम नंबर्स, उसके बाद बेटा मतलब 9 प्राइम नंबर, ही इज सेइंग कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, देन 11, 13, 17, 19, कोई मैं मिस सर किया टू क्या? सर 2 हो गया तब तो एकदम नेसेसरी है कि सर ये हो हम लोग के पास डिविजिबल नंबर आए। आएगा ही आएगा, क्योंकि इवन और ऑड तो वाले। अगर सारे ऑड प्राइम नंबर्स वर्स्ट केस सिनेरियो में आ गए तो हमारे पास 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 होंगे, ये टोटल होके 7 नंबर्स हो गए। वेरी गुड। तो सर अभी हमारे पास 4 नंबर की और जगह है। हम्म। तो हमें बस यही प्रूव करना है कि ये 4 नंबर में से जो दो एनी 2 नंबर्स कम से कम डिविजिबल होंगे। वो नहीं चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, लॉजिकल। अब ये कैसे हम लोग कैसा पेयरअप करें कि ये मेरा काम बन जाए? हाँ, कहानी यही है कि कैसे पेयरअप करूं कि ये काम बन जाए। बहुत मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ ये, इसीलिए मैं शुरुआत में ही थोड़े थोड़े सबके आइडियाज दे रहा हूँ, ये सब दिमाग में। डन सिमिल, Sir, I'm done. 1 भी नहीं आ सकता, नहीं नहीं तो सर फिर ये हो गया, ऑब्वियस हो गया सर। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस सिमिल। यार मैं एकदम रिक्वेस्ट करूंगा सभी से ना, प्लीज एकदम बी टॉकेटिव। पूरा लड़ना है, झगड़ना है सर के साथ, पूरी बात करनी है। आप लोग जितना बात कर पाओगे उतना हम दोनों के लिए आसान रहेगा, राइट? एंड इट्स ओके, मैथ्स इतना आसानी से नहीं आता, और जब आता है तो आसानी से जाता भी नहीं। तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिल एक्सप्लेन प्लीज बेटा, धवल। Okay, ओ, sir. हम्म, I don't know if it's exactly right or not. इट्स But ओके। there are 9 primes from 1 to 20. So if we take any other number from 1 to 20, then it will be divisible by whatever number uh, is in the prime. So ओके, सर यस, for the worst case scenario, we have now 4 numbers left. So if one of those numbers is 2, then it's guaranteed that there will be another number which is getting divided by the 2. So 2 cannot be there. Now, if one of those numbers is 4, it is again guaranteed that there will be a case that one of those numbers will be divided by 4. Or else, if it is not getting divided by 4, it will be divided by any other number present in the 7 prime numbers we have taken before. नॉट Next, sir, we have the number 6. Now, 6 cannot be there as 3 is already has already been taken. Then we have 8. So, if 8 is present, we have no other option than to take 16. Or else, if we take any other number, it will get divided by one of the prime numbers that we have taken before, like 3. वेरी So if गुड, we take 15, it will be divided by 3. If we वेरी take 15, it will also get divided by 5. So even 8 cannot be there. Now, the remaining numbers is 9. Obviously, 9 cannot be there. 10 cannot be there because 5 is there. 11 is done. 12 cannot be there because 3 is there, 6 is there, and 3 is there, 6 is there. Then 14 cannot be there because 7 is there. वेरी, Uh, 15 is done, 16 is done, 17 is also done. uh 18 cannot be there, sir, because it because is divisible 6 by and 3 are there, 2, and 3. 19 is obviously there. Now the only number left is 20. So if there is 5, sir, then 20 will get divided. Okay, so see what I have done, right? 1, 2, 3, 4, 5. These are the number divisible by itself, right? These are the number divisible, right? These are the number divisible.
and these. So how many cases? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 पेयर्स मैंने अलग कर दिए, राइट? एंड फ्रॉम एवरी पेयर इफ आई एम टेकिंग वन, इसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स होंगे, लाइक 15 इज देयर, 15 एंड ये वाले दोनों साथ में आएंगे तो डिविजिबल होंगे, इसके साथ में ये आ रहे हैं तब भी डिविजिबल होंगे, राइट? बट मे बी कि 15 के साथ में 10 ले लिया तो बोथ आर नॉट डिविजिबल, या 15 के साथ 20 ले लिया तो नॉट डिविजिबल, या 15 के साथ सर उस 6 केस ले में लिया तो 6 नॉट, आपने एक्स्ट्रा ऐड किया 6, सो राइट? 1 to 4 वाले केस में 6 एक्स्ट्रा है। चलेगा बेटा, दोनों के लिए, दोनों के इसमें कहीं पर भी आ रहा हो फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं नहीं भी लूं तब भी चलेगा, राइट? सो कैन यू सी दिस कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पेयर्स को मैंने अलग अलग कर दिया कि फ्रॉम एवरी पेयर आई कैन सेलेक्ट वन नंबर, राइट? ये 10 हो गए, राइट? लेकिन जब 11th नंबर मेरे को सेलेक्ट करना होगा तो वो मैं कहां से करूं? 11th नंबर जो सिलेक्शन होंगे तो अगर 1 चूज कर ही लिया तो हो ही नहीं पाएगा, अगर 1 ले लिया आपने इसीलिए तो। एक ग्रुप में ही करने पड़ेंगे, और अगर मैं उसी ग्रुप से नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं मतलब दीज आर ऑलवेज डिविजिबल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या सभी को ये क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। राइट? मैंने 11 13 15 17 19 को एक ये सेलेक्ट कर लिया, 1 2 4 8 16 से मान लो मैंने 16 ले लिया, राइट? आई एम सेइंग कि मैंने जो नंबर्स लिए 11 13 15 17 16, यहां से 19 ये नंबर ले लिया, यहां से 16 ले लिया, यहां से मैंने नंबर ले लिया 12, राइट? यहां से नंबर मैंने ले लिया 10, यहां से नंबर मैंने ले लिया 7, यहां से नंबर मैंने ले लिया 9, राइट? कोई डिविजिबल है एक दूसरे से? नहीं, हमने ऐसे ही पे नो रखे। सर। अब मेरे को जो नंबर लेना है वो तो इन्हीं ग्रुप में से आने हैं मेरे को, राइट? अब अगर इसी ग्रुप में से आने हैं तो अगर मैंने यहां से एक नंबर सेलेक्ट किया तो ये ऑलरेडी जो मैं नंबर ले चुका हूं उसको डिवाइड कर लेगा। मैंने यहां से नंबर लिए तो 7 ले चुका हूं तो 14 हमारा डिविजिबल होगा। अगर 5 10 20 वाले नंबर्स मेरे पास है, 10 ऑलरेडी ले चुका हूं, 5 10 डिविजिबल होगा। सो एवरी टाइम यू विल गेट, तो मेरे पास ये 10 पेयर, तो ये पेयर अप कैसे करने हैं उस पर पूरी कहानी रहती है, राइट? सो नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट वी आर डूइंग इज द इररेशनल नंबर्स, राइट? मैंने एक थोड़े से आइडिया दे दिए हैं, कई सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी एंड कई सारे डिफरेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के ये सब छोटे छोटे टेक्निक्स मैं यूज करूंगा, राइट? दीज आर द बेसिक्स, राइट? जहां भी दिक्कत होगी हम लोग बात कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू करना। नेक्स्ट लेक्चर के पहले हम लोग पहले इनको डिस्कस करेंगे, देन विल गो थ्रू दैट, राइट? आज मैंने होमवर्क आप लोगों को भेजा हुआ था, मैं एक छोटा सा और वर्क दूंगा आप लोगों को आज, राइट? जिसमें कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ओके? देन विल गो थ्रू दैट ना। मैं मैथमेटिकल सर्कल से ही कुछ क्वेश्चन आज आप लोगों को सेंड करूंगा, ये वाले जो लास्ट में हम लोगों ने किया था वो, और कुछ लॉजिकल वाले जो थे, चलेगा? ओके एवरीवन? ओके सर। ओके, अक्षय, अभिनव, सुनील, यस सर। यस सर। ओके ओके। तो मैं हम ये मैथमेटिकल सर्कल से ही आज आप लोगों को होमवर्क दूंगा, राइट? आई एम सेंडिंग दिस ना। तो इन्हीं के क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल गो फॉर इररेशनलिटी, ओके? यस सर। चलो, हैप्पी दशहरा, यस सर। राइट? गो एंजॉय। थैंक यू सर। सर आप लास्ट क्लास का वीडियो भेज सकते हो, मैं एब्सेंट। हाँ बेटा, भेज दूंगा मैं। अब सर मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट भेजा वही है ना?